ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ? ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। सरपरस्ती श्री गुरु सिंह सभा मुंबई दी अज भी है, अगे भी रहे। हॉस्पिटल एक टोटली एक बिजनेस एम्पायर बन गया। हॉस्पिटल्स को बिजनेस एम्पायर अगर बनाया है तो डॉक्टर्स ने नहीं बनाया। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो जाएँ कहाँ, गरीब लोग जाएँ कहाँ? हम नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो हमें अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए हमें थोड़े चार्जेस बीच में बढ़ाने भी पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें भी हैं कि आपको लगे कि अभी भी कमी है, उसको और पूरा किया जाना चाहिए। ये तो हम एक स्पेशलिटी में हैं, अभी हम सुपर स्पेशलिटी में जाएँ, इसका मतलब हम कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए रेडिएशन होता है, इन सब की सुविधाएं बढ़ाएं धीरे धीरे। कैंसर मरीज जमीना ते बाहर सड़कों ते सुते हुए ने। ਅਸੀਂ अपील करके जगह जगह ते 10-10, 15-15, 20 अपना जो रूम है वो बनवाए हुए हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ भलंदर सिंह गुरमानी और ਅੱਜ मैं पहुंचा हुआ मुंबई के गांधी नगर बांद्रा इलाके ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 120 ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੱਖ ਰਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ। जय हिंद, कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है हस्पताल? सो साड़ी शुरुआत हो चुकी है, हस्पताल ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ CEO ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ICU ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ICU ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ICU ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ICU ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ICU ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ICU ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਦਰਾ BKC ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ? ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਸਟ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰਸਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ICU ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU इधर पासे है और NICU इधर पासे है, और इधर पासे मैं देख पा रहे हैं जिवें रेस्ट रूम भी हैगे ने, और अंदर जावांगे अंदर किस तरह ICU की बनतर हैगी है वो भी अपने दर्शकों को दिखावांगे। आओ जी गिल साहब अंदर चलते हैं और इतों के हाल की देखते हैं। अगर असी पूरे असी हस्पताल की गल करिए तो 120 बैड जड़े ने ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ 120 ਬੈੱਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ 120 ਬੈੱਡ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ 450 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੰਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 80,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਫਲੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ICU ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ICU ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ICU ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖਾਸ ਪੂਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਲੈਸ ਨੇ, ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ आप को कंफर्टेबल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ महसूस करे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे पता है आपका ये जो समय है बहुत कीमती है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर शैलजा सिंह। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हम गुरु नानक हॉस्पिटल में आज मौजूद हैं, किस तरह से ये हॉस्पिटल चल रहा है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं? तो ये ना मिडिल लेवल हॉस्पिटल है और ये कम्युनिटी हॉस्पिटल है जी। तो इफ़ वी टेक इनटू कंसिडरेशन मिडिल लेवल हॉस्पिटल, कम्युनिटी, नेबरहुड हॉस्पिटल, इट्स डूइंग गुड। जी। हमारे स्टाफ अच्छे हैं, हमारे आरएमओज बहुत मेहनती हैं और ये सब को देखते हुए इट्स यूज़फुल। अब यहाँ पर जो इतने सारे लोग रहते हैं उनको कोई चाहिए, एक हॉस्पिटल चाहिए जो पास में हो और इमरजेंसी के लिए टाइड ओवर करे। जी। सो विद दैट लिमिटेशंस इट्स गुड। जी, चेयरमैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल के। आपको कुछ इनको रिकमेंड करना और कुछ? नहीं, जो चल रहा है चलने दो। अच्छा चल रहा है। पेशेंट्स हंसते हुए जा रहे हैं बाहर? हाँ, पेशेंट्स हंसते हुए होते ठीक ही होके जाते हैं, नहीं तो फिर दोबारा आते नहीं, आते हैं सब पेशेंट्स बार बार यहाँ पर। लेकिन वही सेम बीमारी के लिए नहीं आना चाहिए। नहीं, और उनको एक चीज़ यहाँ का एडवांटेज ये है कि इनको यहाँ पर जैसे ना बहुत घरेलू फील होता है जी। होमली लगता है और वो भी ज़रूरी होता है। दे आर नॉट इंटिमिडेटेड लाइक इट्स अ बिग हॉस्पिटल और ये बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी, इतना नहीं। इसकी ये एडवांटेजेस है जी। सिंपल है और दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर दिस। जी, थैंक यू सो मच। और गिल साहब, ये बड़ी अच्छी गल हैगी है कि ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स ने इतों के सैटिस्फाइड ने, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उन्होंने कोई फरमाइश भी नहीं की। डॉक्टर भी बहुत अच्छे ने, जब बुलाओ तो आ जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर जो हैं, अपना फेमस डॉक्टर हैं, वो हमेशा डेली यहाँ विज़िट करते हैं और विज़िट करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं। सो लगातार डॉक्टर्स भी इतने बार बार विजिट करते हैं, उन्होंने कोई परेशानी नहीं आती और डॉक्टर्स ਨੂੰ कोई कंप्लेंट नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, सानू बिल्कुल किसी डॉक्टर ਨਾਲ कंप्लेंट नहीं है और ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ और वक्त पे आके उन्होंने बकायदा ट्रीटमेंट देते हैं। साडा अस्पताल का स्टाफ भी है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा इनको ट्रीटमेंट देता है। इसी कारण जो पेशेंट है बार बार यहाँ आते हैं। सो हुण ICU तो बाद चलते हैं OPD सैक्शन में और OPD सैक्शन में भी जाके देखते हैं कि किस तरह दी उत्थे सहूलतां ने, क्योंकि OPD सैक्शन भी बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी हस्पताल का। आओ चलते हैं। सो गिल साहब, असीं हुण इस समय फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जो कि OPD सैक्शन है। हाँ जी, ये OPD डिपार्टमेंट है पूरा जी। और इतने सवेर तो शाम तक OPD होंदी। सवेर मॉर्निंग सैशन होता है तो शाम को 5 तो 7 होता है जी। और बिल्कुल OPD सैक्शन में पहुंच चुके हैं और साडे नाल एक खास शख्स हो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी जो हैं इस हॉस्पिटल के CEO भी हैं और हेड ऑफ इंटेंसिव केयर भी हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने कब ज्वाइन किया था गुरु नानक हॉस्पिटल? 2008 2008 में किया और लगातार कई साल हो चुके हैं आपको इस हॉस्पिटल की देख रेख करते हुए। 2008 और आज हम 2024 में बैठे हैं, कितना फ़र्क देखते हैं हॉस्पिटल में? हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, बहुत फील्ड्स में हमने प्रोग्रेस किया, बहुत न्यू स्पेशलिटीज़ हमने चालू की हैं जी। कोविड का डिफ़िकल्ट टाइम भी हमने गुजारा है जी। कुछ हमारे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक 120 बेडेड 120 बेडेड हॉस्पिटल है और हमें कोविड एंड नॉन कोविड सेक्शन दोनों चलाना था जी। तो हमें दोनों को बैलेंस करते हुए हाँ जी। हमने वो पूरा 1.5 साल निकाला है। बिकॉज जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें दिक्कतें आ रही थी कि छोटा सेटअप है, सो वी हैड अ लॉट ऑफ, हमें बहुत इश्यूज़ थे, बट वी किसी तरह मैनेज हो गया हमसे सब कि हम मिक्स नहीं किया कोविड और नॉन कोविड को हमने जी। एंड वी कुड, हम उसे सेपरेटली कोविड को डील कर पाए और नॉन कोविड को भी हमने सेपरेटली, यानी कि हमने किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं देख पा रहा था कि वेलकम लिखा हुआ है, डॉक्टर्स डे आपने लगता है स्पेशल आपने मनाया है यहाँ पे डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन था लास्ट वीक, तो वी हैड अ स्मॉल ब्रेकफास्ट फॉर ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स को पूरा खुश रखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये एक तरह का ये बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, दे आर वेरी, कि हम ओपीडी में आते हैं तभी हम कोई लेक्चर लेना है, कोई पब्लिक अवेयरनेस करना है, तो उसके लिए तो हमने एक छोटा सा गैदरिंग बना के रखा है। यहीं पे हम स्टैंडिंग पे डेमो कर देते हैं जो भी कुछ रहता है एंड वी डू इट। सो लगातार जो कॉन्फ्रेंस होती है बाहर से भी आप डॉक्टर्स बुलाते हैं? बाहर से बुलाते हैं हम, वो नीचे करते हैं इन द बेसमेंट।
वहाँ पे हमारा एक और कॉन्फ्रेंस रूम है, बेसिकली ट्रस्टीज़ कॉन्फ्रेंस रूम है, हाँ जी। पर हम उसको एज ए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाहर से जो आते हैं दे हैव सम प्रेजेंटेशंस एंड जी। एवरीथिंग फॉर द डॉक्टर फ्रेटर्निटी। यहाँ पे हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव ही होती है, तो डेफिनेटली बात है आपके एरिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनको आपको भी अपडेट रखना पड़ता होगा। Yeah. कई बीमारियां नहीं आती हैं, मेडिसिन्स नहीं आते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं आते हैं, किस तरह से ध्यान रखा जाता है और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स को या स्टाफ को? कैसा है, डॉक्टर्स मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ पे आते हैं दे आर ऑल फ्रीलांसिंग्स। फ्रीलांसिंग का मतलब है दे विजिट मल्टीपल प्लेसेस। तो हाँ जी। मैक्सिमम टाइम तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस बाहर होटल्स में इन सब में होती ही रहती जी। हैं। एवरी संडेज़ को कुछ ना कुछ रहता ही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी रहता है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब सबका अपडेशन वहीं पे होता है। यहाँ पे जो होता है ये मोर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, स्टाफ टीचिंग। तो कोई नया इक्विपमेंट लिया तो उसका यूज़ कैसे करना है, पब्लिक अवेयरनेस में जैसे कोविड आया था, कोई और बीमारी भी रही है, बारिश गिर रही है, बारिश के अंदर मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, तो इन सब की अवेयरनेस कराना पब्लिक को। अभी लेटेस्ट में आया है लिविंग विल, जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिविंग विल के ऊपर दिया है, तो अभी हमारा उस पर वर्कअप चल रहा है कि हम लिविंग विल पे पब्लिक अवेयरनेस करें। हाँ जी। So that क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल्स में एक मिसकम्युनिकेशन बोलो या मिसट्रस्ट हो जाता है बिटवीन द पेशेंट और द डॉक्टर। अगर पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, Definitely. ख़राब हो रही है कंडीशन, तो फिर एक मिसट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। हाँ जी। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं हो, तो इसके लिए हम पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा कर रहे हैं कि वो किस तरह से डॉक्टर से बात करें, क्या क्वेश्चंस करें जो उनके लिए ज़रूरी है जानना। तो वो सब मैं पब्लिक बहुत सारे अवेयरनेस हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज कवर करते हैं। एक शिकायत हमेशा सीईओज़ की रहती है कि जो चेयरमैन हैं वो टाइम नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे जब मेरी रणवीर सिंह गिल साहब से बात हो रही थी, सिंह साहब से मेरी बात हो रही थी, तो डेफिनेटली बात है इनका मानना था, और यहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने बार बार कहा कि जो सर हैं सिंह साहब हैं यहाँ पे प्रॉपर टाइम देते हैं, हर रोज़ आते हैं, तो जो शिकायतें होती हैं वो क्विकली सॉल्व हो जाती हैं। रिजॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में आप क्या उम्मीद रखते हैं गिल साहब से? इसी कैसा है, अभी हमें आगे और बढ़ना है। जी। कैसा, हमने जब शुरू किया था तो हम बहुत बेसिक चीज़ों में थे, हाँ जी। अभी हम एडवांस में गए हैं, लेकिन अभी हम एक सुपर स्पेशलिटी, मैं चाहूँगा बातें भी करते रहें और साथ साथ हम ओपीडी की तरफ भी चलें। या। जी। अभी हमें एक सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ना है, हाँ जी। क्योंकि आज की तारीख में जो पेशेंट है वो या उसके फैमिली है, उनको चाहिए कि सब फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ हो। जी। उनको उस तरीके से आगे बढ़ना है कि जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ रहे, तो उनके लिए ईजी रहता है हाँ जी। मैनेज करना। तो अभी तो हम एक स्पेशलिटी में हैं, अभी हम सुपर स्पेशलिटी में जाएँ, इसका मतलब हम कैथ लैब, MRI, ये सब की सुविधाएं, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए रेडिएशन होता है, उन सब की सुविधाएं बढ़ाएं धीरे धीरे, जैसे भी हमारे फंड्स और सब एलोकेट होते हैं। और ये मैं देख पा रहा हूँ, ये ओपीडी की हम एंटर होने जा रहे हैं ओपीडी या में। चलिए आइए ओपीडी में चलते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार मैं जब भी ओपीडी में जाता हूँ, कहीं भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए होते हैं ओपीडी के। यहाँ पे भी वही सिस्टम है? यहाँ पे हर एक का अलग अलग एक रूम है, एक स्पेशलिटी का ओपीडी एक अलग अलग टाइम पे है और अलग अलग रूम्स में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट डेंटल है जी। तो दिस इज़ अ डेंटल ओपीडी। यहाँ पे डेंटल चेयर, डेंटल के इक्विपमेंट्स, बिकॉज डेंटल का डे केयर है, एडमिशन नहीं लगता, पेशेंट आता है अपना ट्रीटमेंट कराता है चला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे राउंड द क्लॉक मॉर्निंग टू इवनिंग डेंटिस्ट इज अवेलेबल, एनीथिंग कम्स दे हैंडल इट आउट। और इस तरह से अलग अलग मैं देख पा रहा हूँ, जैसे या। ENT भी सामने लिखा हुआ या। है, और यहाँ पे डॉक्टर्स लाउंज भी आपने लिखा हुआ या। है। तो डॉक्टर्स लाउंज स्पेशल डॉक्टर्स के लिए है या अलग वेटिंग staff के लिए? पीरियड एंड किसी को लंच वंच करना हो डॉक्टर्स को, बिकॉज दे आर ऑल फ्रीलांसर्स, एक दूसरे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते रहते हैं तो समय नहीं मिलता है, तो उनको बैठ के अगर खाना हो या किसी को आपस में बात करना हो तो उसके लिए डॉक्टर्स लाउंज है। ठीक है। गिल साहब, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी बड़ी तारीफ की है, हॉस्पिटल की बड़ी तारीफ की है, CEO साहब बारे तुसी की कहना चाहोगे? क्योंकि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरा हॉस्पिटल की देख रेख करता है कि वाकई संतुष्ट 2008 तो लगातार जिवें तुसी तुहाडी सोच सीखी कि हॉस्पिटल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ है, लगातार वध रहे ਅੱਗੇ? जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਾ ਸਾਡੇ CEO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, हाँ जी। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ जी। ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ के लिए डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी ने संभालिया ਸੀ, हैंडल ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ ਉਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਓ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, एक मैं कड़वा सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा और कितना फैक्ट है आप, मैं चाहूँगा कि आप खुले दिल से ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने परिवारजनों को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बिल्स देखते हैं, बिल्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं, जिनकी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, वो टेस्ट भी उनसे करवाए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि आज जो है हॉस्पिटल एक टोटली एक बिजनेस एम्पायर बन गया? सी हॉस्पिटल्स को बिजनेस एम्पायर अगर बनाया है तो डॉक्टर्स ने नहीं बनाया, उसको बिजनेस एम्पायर बनाया है लॉ ने। लॉ ने कहा है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होना चाहिए। जी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में ऐसा होता है कि आपको टेस्ट करोगे तो ही एविडेंस मिलेगा। क्लिनिकल अजम्पशंस को लॉ नहीं मानता। लॉ इज़ वेरी क्लियर कि देयर शुड बी सम एविडेंस। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे पेट दर्द, हमें पता है एसिडिटी से होगा, लेकिन सोनोग्राफी हमें करानी पड़ती है बिकॉज एविडेंस चाहिए। सोनोग्राफी नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं एसिडिटी है। सो इट्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का टाइम है अभी। एवरीथिंग हैज़ टू बी एविडेंस बेस्ड एज पर द कंज्यूमर कोड। नथिंग कैन बी ऑन, कुछ भी हम चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते। पहले कैसा था, अगर आप मुझे पूछोगे 2005-06 में हमारा एक अजम्पशन रहता था, एक एक्सपीरियंस रहता था, हम उस बेसिस पे कह देते थे जी कि ये है, ये दवाई लो। अब वैसा नहीं है। पर डॉक्टर साहब, सिर्फ सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे गरीब जा सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की आज क्या हालत है आपसे भी छुपी नहीं है, मुझसे भी छुपी नहीं है। जब वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो जाएँ कहाँ, गरीब लोग जाएँ कहाँ? सी कैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप देखोगे तो देयर इज़ अ डिफरेंट क्लासेस ऑफ हॉस्पिटल, अलग अलग क्लासेस के हैं। जैसे भी हम चैरिटी ऑफिस के अंदर है तो हमारे चार्जेस आर नॉट एग्जॉर्बिटेंट। हमारे चार्जेस हम नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो हम हमारे खर्चे निकलने चाहिए, हम वो देखते हैं खाली। हमारे चार्जेस कंपैरिजन टू अदर हॉस्पिटल्स आप कंपेयर भी करोगे तो आपको हमारे चार्जेस 50% से भी कम मिलेंगे। बट अभी हमें टेक्नोलॉजी लेनी है, सब लेना है, तो फिर हमें थोड़ा बहुत तो हमें चार्जेस को भी देखना पड़ता है कि थोड़ा हम बढ़ा के किस तरह हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेने, तो हम 20 साल पीछे ही रह जाएंगे। क्योंकि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी डे टू डे बदलती जा रही है। बिल्कुल। हर रोज़ कुछ नया आ जाता है, हर रोज़ कुछ नया चाहिए इक्विपमेंट्स में। सो हमें अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए हमें थोड़े चार्जेस बीच बीच में बढ़ाने भी पड़ते हैं। बट अदरवाइज हमारे चार्जेस आर 50% लेस दैन द अदर बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनसे चार्जेस कम। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गिल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 50% ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। जी। मैं तो रुकांगा थे, बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा कि ये हर हॉस्पिटल में होंदा है कि महिलावां दे लई ब्रेस्ट फीडिंग रूम जिहड़ा स्पैशल बनाया जाता है। इत्थे भी तुसी इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके नाल रखाया है। डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ की पूरी प्रशंसा करूँगा कि ये चीज़ जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। गिल साहब, तुसी अपनी गल पूरी करो। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 120 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇਹ 450 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 80,000 ਫੁੱਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਫਲੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। बिल्कुल, बहुत अच्छी गल है। मैं देख पा रहे थे ऑडियोमेट्री भी है, थे सोनोग्राफी ली है,
अलग अलग डिपार्टमेंट जड़े नहीं वो ज़रूरत है बनाए गए नहीं डॉक्टर साहब हर चीज़ बहुत तरीके से यहाँ पे बनाई गई है हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी आपको लगे कि अभी भी कमी है उसको और पूरा किया जाना चाहिए आने वाले टाइम में जैसा मैंने आपको कहा हमें अभी अपग्रेड होना है हाँ जी टू गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जी क्योंकि कुछ चीज़ों में अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे चल रही है बिकॉज हमें फंड्स चाहिए फंड्स अगर हमें पेशेंट से लेना तो हमें रेट अगर आपको फंड्स मिलते हैं तो सबसे पहले वो फंड्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे सबसे पहले हम कैथ लैब लेकर आए कैथ लैब लेके आएंगे ओके बिकॉज आज की तारीख में वो एक नेसेसिटी बन गई है जी आज देखेंगे तो कैथ लैब क्या होता है कोई डॉक्टर भी सर्जरी भी कर रहा हो कुछ भी कोई ब्लड वेसल कट जाए तो उसके लिए उनको कैथ लैब चाहिए बैकअप के लिए सो आज की तारीख में कैथ लैब इज एसेंशियल अकोमोडेटिव कैथ लैब आपको बनानी है बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गुरु रामदास डायलिसिस सेंटर भी है गिल साहब क्या हम अंदर जा सकते हैं कुछ समय के हाँ लिए आप अंदर जा सकते हैं हाँ पर मैं चाहूँगा कि हम प्रिवेसी का पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखें, मेंटेन रखें ताकि हम किसी भी पेशेंट का चेहरा नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अंदर आ जाएं और हमें बताएं कि टोटल कितने बेड्स हैं टोटल हमारे पास 8 बेड्स हैं 8 बेड हैं और एक HbA/CG HCV पॉजिटिव पेशेंट के लिए अलग से बेड है जी तो लगातार आने वाले टाइम में अगर ये बेड्स की बढ़ोतरी होती है डायलिसिस मशीन्स की बढ़ोतरी होती है तो क्या वो भी आपकी अकोमोडेट कर सकते हैं हम प्लानिंग में है हमारे अकोमोडेट हम क्योंकि जैसे कोविड के टाइम पे हमें सेपरेट करना था कोविड के पेशेंट्स के लिए अलग से फ्री अकाउंट थे तो हमने अलग से 2 रूम्स ओपीडी में अलॉट किए थे जहाँ पे हमने सब फैसिलिटीज़ रेडी रखी है और अभी इस समय कितने बेड्स हैं टोटल इसमें 8 बेड्स इसके लिए नॉर्मल पेशेंट्स के लिए एंड 1 बेड फॉर HIV एंड HbA/CG पॉजिटिव पेशेंट ठीक है अपने दर्शकों को दसना चाहांगा कि ਅਸੀਂ बैक साइड नहीं दिखा सकते क्योंकि लोगों की प्रिवेसी है सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 8 ਬੈਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ और इस तो बाद बड़े प्राइवेट वार्ड्स होते हैं असं उत्थे भी लैके चलते हैं डॉक्टर साहब कौन से फ्लोर पे है जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम्स 4th फ्लोर पे है प्राइवेट वार्ड एंड 6th फ्लोर पे है जनरल वार्ड चलिए उस तरफ लेके चल सकते हैं हाँ जी सिंह साहब असं इतने देख पा रहे हैं कि पूरी कंस्ट्रक्शन जी हैगी है शुरू हैगी है इस समय मिठी मिठी बारिश ज़रूर हो रही है पर इस कंस्ट्रक्शन बारे दसो कि ये जो मैडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन है कितने तक पहुँच चुकी है ये बिल्डिंग जी हैगी है 7 फ्लोर की है जी अजे बेसमेंट अं बनाया वो 80,000 फुट का बनया है जी ये उत्ते 7 फ्लोर जोड़े होर बिल्डिंग बननी है और वो नाल एक विंग अजे और भी बनना है अजे तो जाके साडा पूरा अस्पताल तैयार होएगा लेकिन जिस तरह ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी उस तो बाद साडा मेडिकल कॉलेज जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जो कि असी बहुत देर तो उड़ीक लगा के बैठे हैं कद साडा मेडिकल कॉलेज बने कद साडे सिख बच्चों को डॉक्टर बनने का चांस मिले और कितनी फ्लोर का तुम बनाने सोच रहे हो 7 फ्लोर का ही 7 फ्लोर तक बनेगा डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा 7 फ्लोर्स 7 मंजिला ये मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस कॉलेज से और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये बनकर खड़ा हो जाएगा और स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे आपकी निगरानी में से बिल्डिंग तो बनने में 2 से 3 साल लगेगा जी टोटली एंड हमें फिर हमने MCI से परमिशन ली होगी उसका इंस्पेक्शन इट विल टेक अनदर 1 ईयर मोर और फिर वो हमें कितनी सीट्स की परमिशन देते हैं बिकॉज इट विल बी अ कम्युनिटी कॉलेज सो नॉर्मली दे गिव 50 सीट्स का परमिशन सो हमारी उम्मीद है कि हमें 50 to 70 सीट्स का परमिशन उनको देना चाहिए सो हमें परमिशन देते हैं पर जैसे ही परमिशन मिलती है वी कैन स्टार्ट मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तो कोई भी यहाँ पे मिस्त्री मजदूर यहाँ पे नहीं है बारिश की वजह से नहीं है या अभी काम रुका हुआ है नहीं बारिश की वजह से नहीं बारिश बारिश की की वजह से वजह नहीं है पर फुल स्विंग काम चल रहा है गिल साहब अभी पुल बेसमेंट अजे हुणे कंप्लीट होया 10 दिन पहला ही जी तो हुण असीं अगे फर्दर सीसी वास्ते अप्लाई कर दिता है तो फर्दर सीसी आ जाएगा बारिशों तो बाद मुड़ के फिर इस बिल्डिंग का काम आरंभ हो जाएगा ठीक है और इस समय हम हैं कौन से फ्लोर पे हैं 4th फ्लोर 4th फ्लोर पे हैं और 4th फ्लोर पे ऐसे से देख पा रहे हैं कि डिलक्स A and B क्लास A and B क्लास क्या है ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब A क्लास मतलब सिंगल रूम है G क्लास मतलब ट्विन शेयरिंग है ट्विन शेयरिंग ट्विन शेयरिंग 2 पेशेंट्स एक रूम में तो इस समय की बात करें तो कितना भी फुल है यहाँ पे लगभग फुल है लगभग फुल है या ये अच्छी बात है क्योंकि लोग यानी कि देख पा रहे हैं कि कितना हॉस्पिटल जो है सही तरीके से चल रहा है कितने रूम्स हैं यहाँ पे जो प्राइवेट रूम्स हैं टोटल 23 रूम्स हैं टोटल प्राइवेट रूम्स ये फ्लोर टोटल प्राइवेट रूम्स टोटल प्राइवेट रूम्स का है और इसमें भी कोई VVIP कैटेगरी भी आपने रखी हुई है या नहीं, सारे एक जैसे सब एक जैसे वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली
ठीक है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे फ्लोर्स तो बहुत अच्छे हैं बनाए हैं आपने, कमरे बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, लेकिन जो हमारी बात चल रही थी कि आपने कैथ लैब की गुजारिश की थी कि कैथ लैब बनेगा अगर फंड्स आते हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी डिमांड आपको लग रहा है कि इस हॉस्पिटल को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है? कैथ लैब है, MRI सेंटर है एंड रेडिएशन, कैंसर रेडिएशन। जी। बिकॉज समय की मांग है सर। आज की तारीख में पूछोगे तो हार्ट के पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा है जी। और कैंसर के पेशेंट्स में रेडिएशन लगे ना लगे तो कीमोथेरेपी, सर्जरीज अभी पार्ट एंड पार्सल हो गई है, मुझे लगता है सबको। तो ये सब चीज़ें चाहिए, क्या होता है कि अगर वो कीमो हमारे यहाँ करे और रेडिएशन कहीं और करे तो उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है, बिकॉज वो पब्लिकली बार जा नहीं सकते, एक्सपोज हो जाएंगे तो कोई इन्फेक्शन पकड़ लेगा। इसके लिए जहाँ तक हो सके सब कैंसर पेशेंट्स ये लोग रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपने एरिया में। जी। रणबीर सिंह जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 250 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 60 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੀ AC ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੀਮੋ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10-10, 15-15, 20 ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना उत्थे वो कैंसर पेशेंट मरीजों को रख के उन्होंने पूरा योगदान करते हैं, पूरा फायदा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने भी देखी होगी मरीजों की हालत, बहुत जर्जर हालत में वो रह रहे हैं। किस तरह से उन्होंने बारिशों के दिनों में तरपाल डाल के टेंट लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इलाज बहुत ज़रूरी है। हर कोई चाहता है कि अपने माता पिता का इलाज, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने भाई बहनों का इलाज कराए। इसी वजह से वो सड़कों पर रुके हुए हैं। किस तरह से उनकी तकलीफ को दूर किया जा सकता है आने वाले समय में? कैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि हर स्टेट में एक इस तरह का सेंटर हो। अभी कैसा हो रहा है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर लोड पूरे इंडिया से जी, वो अभी किसी पेशेंट को एक ही दिन की कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, उसकी नेक्स्ट कीमोथेरेपी साइकिल 1 हफ्ते बाद आएगी, पर वो आया कश्मीर से है तो वो 1 हफ्ते के लिए कश्मीर तो नहीं जा पाएगा डेफिनेटली। फिर उसको यहाँ रहने के लिए फैसिलिटी होती नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं होटल्स को या जहाँ पे वो आइसोलेटेड रह पाए, क्योंकि उन सब पेशेंट्स को आइसोलेशन रहना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, लगातार क्योंकि सरकार के ऊपर आप पूरा दबाव डाल रहे हैं कि सरकार को कदम उठाने चाहिए कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए, पर क्या वो मदद हो पा रही है? सी सरकार ने अभी एम्स सेंटर्स हर स्टेट में खोला है। अब उसका लोगों को जागरूकता होना चाहिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट एम्स में हो सकता है जो टाटा के लेवल का है। इसलिए लोगों को आज हम भी जब बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे टाटा कैंसर के लिए, उसको एक लेबल लगा हुआ है। अभी जैसे जमशेदपुर में एक और टाटा हॉस्पिटल है, पर वो भी टाटा का ही है और वो भी कैंसर के लिए, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हुआ है अभी तक। सो गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए, एजुकेशन करे, अवेयरनेस करे। बिल्कुल अवेयरनेस चाहिए, बिल्कुल हमारे यहाँ जागरूक अवेयरनेस का सबसे बड़ा इशू है। ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहे हैं रणबीर सिंह जी की डोनेटेड बाय सरदारनी बलबीर कौर एंड सरदार इंद्रजीत सिंह सूरी इन लिविंग मेमोरी ऑफ देयर बिलव्ड फादर लेट सरदार नानक सिंह सूरी, यानी कि इन्होंने जी डोनेशन दी है इस कमरे लिए तो उन्होंने नाम इतने वो घेरिया गया। जिस तरह पहला दस चुका कि पूरा हस्पताल ये डोनेशन नाल बनया है। हाँ जी। एक कमरे का भी लोगों ने डोनेशन दिता है जी, उस वे फिक्स किया जिन्हें दिता उसके नाम की प्लेट इतने लगाई गई है उन्होंने यादगार में जी, जो भी किसी ने कमरा बनवाया तो उस तरह सारे कमरे के सामने तुम देखोगे प्लेटें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी जो हैं सब कैबिन्स के आगे ग्रीन लाइट ऑन है, इसके आगे लाइट नहीं है, दैट मीन्स ये कमरा खाली है, तो हम जा सकते हैं इसके अंदर? जा सकते हैं। तो ज़रूर असी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह है। और अंदर जी है कमरे की पूरी तैयारी चल रही है।
आप पकड़ के रखिए इसे। और देख पा रहा हूँ कि ये डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अंदर आएँ और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप पूरी दी हुई हैं, आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिए। सिंगल पेशेंट का बेड है, रिलेटिव्स के लिए एक सिंगल रिलेटिव ठहरता है हमेशा, उसके लिए सोफ़ा है जी। टेलीफोन है जो 24 आवर सर्विस चालू रहती है हॉस्पिटल के अंदर, वो है, टीवी है, एंड माइक्रोवेव का अगर कुछ लगता है तो हम बाहर से उनको गर्म करा के दे देते हैं, अगर कुछ घर से लाए हैं खाना। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि खाना फ्री ऑक्सीजन है। वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। ऑक्सीजन है, सक्शन है, इमरजेंसी की सब फैसिलिटीज़ हैं जो भी इमरजेंसी में लगे। ठीक है। और वॉशरूम अटैच वॉशरूम अटैच बाथरूम है। तो हर जगह की हर जो सहूलत है यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अब जनरल वार्ड में चलें। या चलिए जनरल वार्ड में चलते हैं। सो हुण असी पहुंच चुके हैं 6th फ्लोर पे। डॉक्टर साहब, ये जो फ्लोर है वो जनरल वार्ड के लिए है। सो टोटल यहाँ पे कितने बेड्स हैं ये भी बता दीजिए। बेड्स हैं, मेल एंड फीमेल सेक्शन है। हाँ जी। इसके अलावा एक स्पेशल गायनेकोलॉजी रूम है, मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स डिलीवरी के लिए, जी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, और बच्चों का एक अलग से रूम है 3 बेड्स का, जनरल रूम है जो बस एडल्ट्स के साथ मिक्स नहीं करते उनको आप। ओके। और अगर स्टाफ की बात करें तो एक फ्लोर पे कितना स्टाफ अमूमन रहता है? पर शिफ्ट के अंदर मिनिमम 4 स्टाफ रहता है, तो 4 स्टाफ पर देयर वाज 3 पेशेंट रेशियो रहता है। सो अगर बाद में अगर कोई पेशेंट ऊपर नीचे होता है तो भी शिफ्ट अकॉर्डिंगली। ओके। आईसीयू में 2:1, 2 पेशेंट 1 नर्स, एंड इन फ्लोर्स के अंदर इट इज 4:1। ठीक है, मैं ज़रूर कैमरामैन को बोलूँगा कि वो इस तरफ दिखाएं, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर साहब कि यहाँ पे हर जो बेड है उसकी अपनी प्रिवेसी सेट कर रखी है, ताकि जो कर्टन्स हैं वो पूरे रहें और हर किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और किसी को परेशानी भी ना हो कि दूसरा पेशेंट मेरी तरफ देख रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। पेशेंट्स की प्राइवेसी मेंटेन की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमेशा जनरल ऐसा होता है कि वो ओपन बेड्स लगा के छोड़ देते हैं, जब ट्रीटमेंट करना होता है तभी वो कर्टन लगाए जाते हैं ज़्यादातर। प्राइवेसी इज टू बी मेंटेन। जी सर, लास्ट में आखिरी में गिल साहब तोड़ को लावांगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हस्पताल का रख रखाव जड़ा हैगा वो सही हत्थां 'ਚ होवे और पैसा जड़ा सही हत्थां 'ਚੋਂ लगे, क्योंकि पैसा ही अज की खेड 'ਚ देवता मनाया जाता है। और किस तरह पैसा इकट्ठा किया जाता और कित्थों इकट्ठा किया जाता ज़रूर तौर पर जानना चाहांगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। और उतो शुरुआत करके फिर लोगों ने घर खोल कर रख के फिर लोगों के पास अप्रोच करके पैसा इकट्ठा करके लोगों के पास फिर अप्रोच करके भी एक रूम के तुसीं पैसे दिओ, इस तरह करके किसी ने मशीनरी के पैसे दिते, उस पैसे के नाल इकट्ठा करके डोनेशन इकट्ठा करके अस्पताल बनाया गया है। लेकिन अगे भी मैं अपने पूरे देश और विदेशों में जिन्ने भी गुरु नानक नाम लेवा वसते हैं उन्होंने मैं निम्रता सहित हथ जोड़ के बेनती करना चाहांगा कि तुसीं वध तो वध अपने नेक कमाई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ 7 ਫਲੋਰ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए, और रघुवीर सिंह गिल साहब थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े उमदा तरीके नाल तुसीं हॉस्पिटल चला रहे हो, इस तरह ही चलाते रहो, इस तरह ही फुलदा फुलदा साडा हॉस्पिटल रहे। सरदार बलिंदर सिंह बरवानी जी, मैं आप जी का तह दिलों ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बहुत ही वधिया एक मैडिकल कॉलेज, और जो कि डॉक्टर नरेंद्र शर्मा CEO साहब भी उस पूरी
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।